Good morning, Rita. Good morning. चलो. Impact of globalization on agriculture. Globalization. You have listened the name of globalizations. Anyone? Have you listened the name of globalization, beta? Yes, ma'am. Tell me. Do you know what is globalization? Globalization means interlinking of one nation with another nation. Interlinking of one nation with the another nations by the trade, commerce, by the flow of labor, capitals. This is known as globalization. Is it clear? Interlinking means all the words, they are interconnected with each other. कैसे connected है? All the country, they are trading with each other. They supply the good from the one nation to the another nations. The peoples moving from one place to the another place, one nation to the another nations in search of job. And also the multinational companies, they started to spend the money from one nation to the another nations for earning more and more money. Is it clear? So it is known as globalization. कैसे हो गया? Why the whole world is connected? Why the India is connected with the other countries? क्यों? कैसे हम लोग connected? Industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, वो तो रीजन है कि बहुत अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम कैसे, हम उन कंट्रियों से क्या करते हैं बेटा? कैसे इंटरलिंक है? हम क्यों उन कंट्री में जाते हैं बेटा? By trade, transport. वेरी गुड. फर्स्टली ट्रेड. वी स्टार्टेड, नहीं वो तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा, मतलब हम इंटरलिंक, हम सामान को सप्लाई करने के लिए हम लोग ट्रेड कम्युनिकेशन को डेवलप कर रहे हैं. लेकिन इसलिए व्हाई डू वांटेड टू बी कनेक्टेड विद दैट? व्हाई यू डेवलप द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस? क्यों? फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस. We wanted to be trade. We wanted to supply our goods to the another country for earning more and more money. So for the trade, we are interlinked each other. ठीक है? अब कैसे ट्रेड करते हैं वो अदर थिंग्स है कि वाई, यहाँ क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी इंटरलिंक? हम दूसरे कंट्री से इंटरलिंक क्यों करते हैं? तो फर्स्ट, फॉर द ट्रेड. One country wanted to earn more and more money, so they started to be transport their goods, supply their goods from one country to another country. This is known as trade and commerce. इसी को कहते हैं ना, supplying of goods. This is known as Trade exchange of goods. This is known as trade and commerce. फिर दूसरा है कि you know that कि in this modern era, the people started to be moving from one nation to the another in search of job. जैसे इंडियंस देखो, पढ़ाई लिखाई करके कहाँ जा रहे हैं? America. क्यों जाते हैं वहाँ? Why they are going to there? Because they get more respect there. जॉब के लिए. फिर यू नो दैट कि मेनी मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं. कंपनी आ रही, तुम्हारी कंट्री में कंपनियां हैं, जैसे होंडा, सुजुकी, ये क्या है? जापान की कंपनियां हैं. तो ये कंपनी क्या करती हैं? तुम्हारी कंट्री में क्या करती है बेटा? दे इन्वेस्ट मनी. तो ये हो गया. तो ये तुम्हारी कंट्री की तो मनी है नहीं. ये कौन मनी ला रहा है? फॉरेन. तो ये फ्लो ऑफ कैपिटल बोले इसको. तो थ्रू द फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ ट्रेड, द होल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड interlinked with each other, intermingle with each other. This is known as globalization. Is it clear beta? Globalization? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इतना मिल गया है, ठीक है, कि यू कांट बी से दैट कि क्या, वो तो अभी तो इतना ज्यादा के हैं. कैसे वर्ल्ड इज कम टू ईच अदर्स? कैसे आगे? कौन से कारण से हम लोग इतना
सकते हो कि होल, अब ये पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह हो गया है। पहले जो वर्ल्ड है पूरा एक दूसरे से बहुत दूर था। इस कैसे how shrinked due to extension of transport and communications. Now you can say that in the morning you take your breakfast in India, and during the lunch time you can be reached to the Britain, and at the dinner you can be reached to the America at the same day. मॉर्निंग का लंच लेकर ब्रेकफास्ट लेके इंडिया से निकलो, लंच के समय कहां पहुंच जाओगे? ब्रिटेन, और शाम को डिनर समय कहां पहुंच गए? रात में अमेरिका। ये कैसे पॉसिबल हो गया? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ transportation. Now you are sitting in your room, in your bedroom, and your any relative is living into the कहाँ पे? अमेरिका में या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया. You can sitting in your room and you can easily be talk, interact with them. घर में बैठ करके फेस टू फेस तुम बात कर रहे हो. How it is possible? Communication. Development of communication. तो पूरा वर्ल्ड इतना ज्यादा मतलब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के द्वारा एकदम श्रिंक हो गया है. हम लोग इंटरलिंक हो चुके हैं एक दूसरे से. यही क्या है बेटा? ग्लोबलाइजेशन. तो यदि क्वेश्चन आता है विथ हाउ डू द होल वर्ल्ड इज इंटरलिंक विथ ईच अदर, तो क्या लिखोगे? पूरा वर्ल्ड कैसे इंटरलिंक है? किस चीज से इंटरलिंक हुआ? टू द Transportation. नहीं, पहले सुनो. थ्रू द ट्रेड एंड कॉमर्स, whole country of the world, they are interlinked with each other. ठीक है? Why do whole country interlink with each other? या ठीक है, तो बोलोगे कैसे इंटरलिंक हुआ? फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, लेबर एंड कैपिटल. विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कौन सा फैक्टर है? तब लिखोगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल? किस फैक्टर के कारण ग्लोबलाइजेशन तेजी से बढ़ा है? किस फैक्टर के कारण? क्यों तेजी से ट्रेड हो रहा है? क्यों? कौन से फैक्टर से? हम बहुत तेजी से सामान सप्लाई, बहुत तेजी से लोग एक दूसरे से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं. कौन सा फैक्टर इसमें मतलब हेल्पफुल है? दे यू गिव द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ओके, Yes, ma'am. बात समझ में है कि व्हाई डू होल कंट्री इंटरलिंक विथ ईच अदर्स? तब वहां पे लिखोगे ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स, लेबर एंड कैपिटल. से ये ग्लोबलाइजेशन मतलब होल वर्ल्ड इंटरलिंक. लेकिन विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में सहायक कौन हुआ है? कौन सा फैक्टर? तो ट्रांसपोर्टेशन एंड Development of transportation and communication. कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है. हाउ दिस ग्लोबलाइजेशन इफेक्टेड ओवर द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेनन. इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ colonization. मींस कि दिस इज नॉट द न्यू फैक्टर्स कि द आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया वी हैव लिसनिंग दिस. ये बहुत सालों पहले से, सदियों से है. Because you know about that कि in the ancient period also the people move from the one place to the another place and they transport the goods. है कि नहीं है? History is the witness for that. क्योंकि तुम लोग देखते होगे कि तुम्हारे यहाँ जो करेंसी है, पहले लोग क्या यूज करते थे? कौड़ी. कौड़ी, सीसेल जानते हो ना? सीसेल, कौड़ी जानते हो? कौड़ी Yes, ma'am. लोग देखो पहले जानवरों के गले में बांधते थे, व्हाइट कलर का होता है सीसेल. देखे हो कभी? घर में जाके अपने मम्मी पापा से पूछना कि कौड़ी क्या होता है. ओके, तो व्हाइट कलर का होता है. और लोग क्या करते थे? इंडियंस उसको करेंसी के रूप में यूज करते थे. कैसे? उसको दे करके सामान खरीदते होते थे. तो ये जो इंडियन करेंसी दैट वाज फाउंड इनटू द इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, वहां पे पाया गया. तो हाउ व्हाट दिस, वो तो इंडियन करेंसी वहां कैसे पहुंच गई?
Due to कैसे पहुंच गई? globalization. कैसे पहुंच गई? Through trade. That means in the ancient period of the time, the people also be interconnected with them through the trade. The peoples connected with them for the trading purposes. So that is when we are going to be moved from one place to the and the place interconnected with the other. That is known as the globalization. So globalization is not a modern phenomena. It is already be found from the ancient time of the world. ठीक है, प्राचीन काल से ये वर्ल्ड में है, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी स्प्रेडिंग फास्टली. अब इस समय जो है बहुत तेजी से ये फैल रहा है ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. पहले तो भाई एक दूसरे से इंटरलिंक में टाइम लगता कि नहीं लगता था? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, कम्युनिकेशन तो था नहीं, तो सदियों लग जाते, बहुत समय लगता था लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में. लेकिन फिर भी उस समय भी ग्लोबलाइजेशन था, बट दैट टाइम द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस वाज वेरी Slow. स्लो. ठीक है, क्यों स्लो था? व्हाई इट वाज स्लो? Due to lack of technology. Due to the lack of technology, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कहाँ पे? किसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. वेरी गुड. तो हाँ, तो ये भी कोई कहेगा, क्वेश्चन में आता है, इज द ग्लोबलाइजेशन इज द मॉडर्न फेनोमेना? नो, इट इज रॉन्ग. इट इज फाउंड इन द होल फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड ऑफ द टाइम. तो यदि आता है ग्लोबलाइजेशन इज द मॉडर्न फेनोमेना, मेडिवल फेनोमेना, द एंशिएंट फेनोमेना, तो किसमें लिखोगे टेक? ancient phenomena. ठीक है. नाउ तो यूरोपियन era in there at the time of colonization in the 19th century, when the European traders came to the India, at that time Indian spices were exported to the different countries of the world, and the farmer of the South India were encouraged to grow these crops. अब बता रहा है कि इंडिया में कि जब ब्रिटिशर्स आए थे उसके पहले से भी इंडिया जो है दूसरे कंट्री से कनेक्टेड था. मेनी फॉरेन ट्रेडर्स केम टू आवर कंट्री एंड अरब ट्रेडर्स आते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स भी आते थे. किसके लिए आते थे? इंडिया वाज पॉपुलर दैट टाइम. इंडिया किस लिए फेमस था? अपने स्पाइसेस के लिए. ठीक है, स्पाइसेस और प्रीशियस स्टोन, क्योंकि जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो किसके किनारे बेटा? दिस इज नियर टू द सी शोर. सो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज पॉपुलर फॉर द स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स. और गुजरात, महाराष्ट्र जो था वो पार्ट किसके लिए फेमस था? दैट वाज फेमस फॉर द कॉटन. तो द मेनी पीपल केम टू हियर, ट्रेडर्स आते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे? वो स्पाइसेस. तो यहाँ के किसान जो है क्या खेती करते थे? द फार्मर ऑफ द साउथ इंडिया, दे ग्रो द मोर एंड मोर स्पाइसेस फॉर द ट्रेडिंग पर्पजेस. टिल टुडे इट इज वन ऑफ द इंपोर्टिंग आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया. आज भी इंडिया से मसाले कहाँ जा रहे हैं? to the other country. India is the largest exporter of the spices, consumer as well as exporter of spices. लोग मसाला बहुत खाते हैं और मसाले का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी करते हैं. Is it clear? Yes, ma'am. आज साउथ इंडिया के वो साउथ इंडिया आज भी एक्सपोर्ट करता है. Now during the British period, cotton belt of the India attracted the British, and ultimately the cotton was exported to Britain as the raw material. You know about that. Who motivate the cotton in India? India में cotton Britishers. क्योंकि India's climate was suitable for the growing of the good quality of the cotton. I have taught cotton के लिए कि good quality of cotton India में बहुत अच्छा होता है. ठीक है, तो Britishers they motivate the Indians for the growing the more cotton. किसके लिए? For enhancing their industries. Which industries? Textile industry. कहाँ पे था? Textile industry. देखो दिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर. ब्रिटेन में उनकी इंडस्ट्री थी. कहाँ पे? मैनचेस्टर में. वहां पे वर्ल्ड का सबसे अधिक टेक्सटाइल, इसीलिए कहा जाता है इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद. यूपी का मैनचेस्टर? कानपुर. ठीक है, कानपुर. तो ये मैनचेस्टर इज अ प्लेस इन द ब्रिटेन. इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल. तो इंडिया में मैनचेस्टर नहीं है, आता अहमदाबाद को मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं. जिस तरह मैनचेस्टर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्रिटेन का टेक्सटाइल में, उसी तरह इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अहमदाबाद
इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर नाम दिया गया है। ठीक है, मैनचेस्टर एंड द लिवरपूल, वहां पे दो हैं प्लेस जहां पे वर्ल्ड का सबसे क्या बनता है, टेक्सटाइल। तो वहां पे जो रॉ मटेरियल कॉटन होता था, दैट वाज नॉट द सफिशिएंट फॉर दिस इंडस्ट्रीज। सो द ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फोर्स द इंडियन टू ग्रो मोर एंड मोर कॉटन, और वो सारा कॉटन कहां सप्लाई कर देते थे, ब्रिटेन सप्लाई टू द मैनचेस्टर एंड द ब्रिटेन। ओके, so due to the ability, good quality of cotton from India, you have already read about that, the चंपारण मूवमेंट। ठीक है, यहां से कॉटन गया तो इंडिया किससे इंटरलिंक हो गई थी, यूरोप से इंटरलिंक थी कि नहीं थी, यहां से जा रहा सामान, यही ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब है, ठीक है, तो इंडिया से कॉटन सप्लाई होता था। फिर तुमने पढ़ा भी है चंपारण, व्हाई डिड द पीपल ऑफ चंपारण स्टार्ट द मूवमेंट बेटा, जल्दी बोलो, तुम लोग कुछ बोल रहे, धीरे धीरे सुस्त होते चले आ रहे हो। Why did the people Champaran start the movement? Indigo plantations. Britishers forced them for the growing of indigo. Why they grow the indigo? Why they forced them for the growing of indigo? This indigo was used for the textile, for the coloring of the clothes. कलर को, एक कपड़े को कलर करने को, डाई करने के लिए इंडिगो को यूज करते थे। ठीक है, so they forced for the growing of the indigo to the people of Bihar, but the people of Bihar, they are not be interested to for growing of that because they destroy the fertility, and due to this they are unable to grow to the cereal crops। एक इंडिगो की वो फार्मिंग करते थे तो उससे जो है उनके खेतों की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। और दूसरा ये था कि इंडिगो की जब वो खेती करते थे तो अपने खेतों में क्या कर पाते थे, सीरियल क्रॉप्स, अनाज नहीं उगा पाते। और दिस सीरियल क्रॉप्स वाज इंपॉर्टेंट फॉर देयर फैमिली। खाने के लिए क्या चाहिए, इंडिगो, नो मैम, क्या खाओगे, सीरियल क्रॉप। तो ये फार्मर्स, व्हेन द फार्मर्स ग्रो द इंडिगोस, दे आर अनेबल टू ग्रो टू द सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, सो द फार्मर वर नॉट बी इंटरेस्टेड टू ग्रो टू द इंडिगो, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते थे, they also didn't provide the good prices for this indigo। उनको अच्छा प्राइस भी नहीं देते थे कि उस प्राइस से वो सीरियल क्रॉप्स भी खरीद सके। so they were the sufferer, so they were not interested to grow to the indigo। उसके रीजन था, देखो, why they are not interested to grow to the indigo, because due to the indigo the fertility of soil was destroyed। Next thing, due to this indigo the farmer are unable to grow cereal, by that they can fulfill the basic needs of their village। not provided the good price to the farmers। farmer को इसका सही प्राइस भी नहीं देते, अनाज तो and necessary for Ma'am, your voice is breaking up. Ma'am, your voice is not audible. Yes, ma'am. पूछा जा सकता है। Ma'am, voice is your not audible. Voice is not audible. Ma'am, your voice is not clear. ओके बेटा, हेलो Yes, ma'am. yes ma'am, हेलो, Yes, ma'am. नॉट ऑडिबल, Yes, ma'am. yes ma'am, आवाज आई, Yes, ma'am. ठीक है। तो व्हाई डू द पीपल ऑफ, व्हेन वाज द पीपल ऑफ चंपारण स्टार्ट द मूवमेंट, 1917, व्हाई दे स्टार्ट द मूवमेंट्स, Against indigo plants. very good, they were against to grow the indigo plantation, very good। okay, next thing, why the indigo
Why the Britishers forced the Indian farmers for growing of indigo? To use that Because they textile need industry it for in making textile of industries. Very good. Note it down the question, beta. Why did Britishers force? Why did Britishers force Indian farmers for growing indigo? For growing indigo. Yes, ma'am. So note they कर लिया. force them locally to for textile industries. ठीक है, ये सब नोट करते जाना बेटा. Okay. Which place of largest producer of textile? Manchester and Manchester and Liverpool. Liverpool. very good. Liverpool. Very good. Good. Next thing, which part of India is popular for exporting of spices? South part of India. Southern part of India. अच्छा. Next, which thing is used as a raw material in textile industries? Cotton. 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 Very good. Okay. ठीक है. Now next, under globalization, particularly after 1919. अब देखो, means कि in 1919 what happens? India become the liberalized. India opened their trade barrier. 1990 तक क्या था? इंडिया ने अपने ट्रेड पे बैरियर लगा दिया था. उस बैरियर से लगाने का मतलब ये है कि कोई भी बाहर से कंट्री हमारी कंट्री में भी आना चाहता है तो उसको हाई टैक्स देना पड़ेगा. तो when any company give the high taxes, that means they are in the loss. लॉस में जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि तुम तो जो टैक्स भर दोगे तो टैक्स से तुमको क्या प्रॉफिट होगा? तो नो वन इंटरेस्टेड फॉर दैट. तो इंडियन गवर्नमेंट 1919 तक क्या लगाई थी? टैक्स लगाती थी. बट आफ्टर 1919 इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज. यू विल रीड अबाउट द डिटेल अबाउट इन द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में डिटेल में हम बताएंगे कि लिबरल क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर को लगा दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे तुम अभी यहाँ पे तुमको जरूरत नहीं है. तो 1990 में क्या हो गया? फॉर्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज अ न्यू चैलेंज. तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा 1990 में? व्हाट वाज देयर? व्हाट वाज देयर? Liberalize the trade. देखो, इंडिया लिबरलाइज द ट्रेड. तो दैट विल बी क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ होम, इन फ्रंट ऑफ इंडियन फार्मर्स. क्या उन्होंने क्रिएट किया Indian farmers. कि कैसे प्रॉब्लम हो गया कि डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ऑल ऑफ यू नो दैट, यू हैव heard that इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ गुड, इंडिया इज द occupied the second place in the production of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute. तुम लोग देखा होगा कि इंडिया का कुछ ना कुछ प्लेस है, लेकिन इन कंपेरेटिवली टू द other country of the world, especially the developed country of the world, India's means कि the India's farmers cannot be compete with them. यदि हम पूरे वर्ल्ड के किसानों के साथ यदि हम कंपेयर करते हैं अपने किसानों के साथ, ठीक है, तो then the condition of our farmer is not so good in comparison to the developed countries. So can the Indian farmer get the profit from them? No, ma'am. प्रॉफिट No, क्यों ma'am. नहीं कर सकते No, हो? ma'am. Suppose I am giving the example to you at a very easy examples. You can be easily be understand. Globalization क्या है? First you know about that. Suppose whole school of the world, वाराणसी, पूरा वर्ल्ड, all the school of मतलब ये बनारस के सारे स्कूल क्या interlinked with each other. Going to be held any competitive exams, the student पर्टिकुलर प्लेस में आ रहे हैं, दे आर कॉम्पिटिशन होता है ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है कि नहीं होता बेटा? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन अभी लिसन. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इंटर स्कूल, स्कूल में कंपटीशन होता है, पहले ड्राइंग कंपटीशन है, रीडिंग कंपटीशन, दैट इज स्कूल हेल्ड एट द स्कूल बेसिस. वो अच्छा कर रहा है, लेकिन इंटर स्कूल में क्या होगा कि जो बच्चा इन सारे स्कूल में मिला के जिस स्कूल के बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो बच्चा क्या करेगा?
उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो किस बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा बेटा? मान लो तुम्हारे बनारस के सारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन बच्चे को मिलेगा बेटा, जिस स्कूल का बच्चा अच्छा ड्राइंग करेगा, बनाएगा अच्छा ड्राइंग, ड्राइंग करेगा। ठीक है, अच्छी अभी ड्राइंग तुम बनाएगा। एग्जांपल लो, अभी तुम्हारा कौन सा गेम चला? ओलंपिक गेम चल रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. विच Olympic. गेम इज गोइंग ऑन? ओलंपिक। सबसे अधिक मेडल किसको मिल चुका है? विच कंट्री गॉट द मैक्सिमम मेडल? Ma'am, China. Ma'am, China. जापान। ठीक है, जापान चाइना, जापान सेकेंड इज चाइना। ठीक है, फर्स्ट इज जापान, देन सेकेंड इज चाइना। क्यों क्यों मिल रहा है भाई? क्यों नहीं इंडिया को मिल रहा है? कैन यू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्यों नहीं मिल रहा है इंडिया को? हम Because encourage they किया जा take रहा है। game activities as an important field. Very good. The government spend more money over the game. They motivate the people of that countries. For this reason, their performance is very good. But the Indian government not be expending too much over that. Then how their performance will be good? That is the lacking. समझ में आ रहा है? ये हमारा कमी है। उसी तरह खेतों में भी यही होता है बेटा। जो डेवलप कंट्री है, दे प्रोवाइड मोर एंड मोर सब्सिडीज। सब्सिडी मीन्स what is subsidy? The money given to the Anyone? common people from the government. Government subsidy helping. ठीक है, the government provide more and more help to the farmer of these countries. So the farmers, they are growing more and more food products or any crops at a large amounts. And if the production will be the good, then they can be compete with any others. तो जब तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत हाई होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में किसको कौन छाएगा? Who will be capture the international market? Developed countries. For this all आवाज आ रही बेटा? Why you audible? Yes, ma'am. yes ma'am. Ma'am, some Why you audible? मैम बहुत क्रैक हो रही है आपकी वॉइस। मैम क्लियर नहीं आ रही है। यस मैम क्लियर नहीं Beta, there is some network problem. There is some voice. Now is voice clear? No, No ma'am. ma'am. नो मैम। एक मिनट बेटा, थोड़ा देते मैं बंद करती हूँ। 1 minute. हेलो, नो ऑडिबल बेटा? यस मैम। Audible. अब आ रही है? यस मैम। यस Ma'am, are आ रही है? चलो, ओके। तो द इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे जो होता है कि द डेवलप्ड कंट्री प्रोवाइड मोर एंड मोर सब्सिडी टू देयर farmer. So with the help of that, the farmer grow the more and more product and they capture the international market. So in this situation, how the Indian farmers can be compete with this farmer, the farmer of developed country? Can they compete? No ma'am. They can't be compete because the Indian government did not provide the subsidy like the developed country. जो डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट वहां के लोगों को सब्सिडी दे रही है, उस तरह की सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट नहीं देती। क्यों?
Farmers. Farmers group. Okay, so here is given that despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. क्यों नहीं कर पाती है? अब यहाँ पे आएगा why do the agriculture producer of India, why do agriculture producer या why do the farmer of India, why do farmer of India, why do farmer of India do not compete with the farmer of developed country, the farmer of developed country. You know better? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों नहीं करते? Why they are unable to compete? Because developed countries Because get Indian more government did subsidy not by their provide subsidy government. to Indian farmers. Very good. Because the Developed countries. developed country provide the more subsidies to their farmer. Right on? Developed country provide more subsidies to their farmer, whereas Indian may not provide such subsidies. Okay? Dekha? Yes, ma'am. Have you not? Okay. Now next is, today Indian agriculture found itself at crossroad to make the मतलब इसमें सबसे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है इसमें बहुत प्रॉब्लम है. क्यों? To make agriculture successful and profitable, proper risky trust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmer. यदि हमें इंडिया के एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, then what the government have to do? Government have to provide more and more subsidy to the small farmer. किसको प्रोवाइड करना बेटा? Small farmers को. ठीक है. तो for enhancing the of India, what the government have to do? So for enhancing the condition of Indian agriculture, what the government of India should have to do. India should have to do. तो क्या करना होगा? Government have to provide. Answer बताओ. Government have to provide more and more subsidies to marginal and small farmer. Marginal means होता है बेटा जो मतलब पुअर नहीं है लेकिन पुअर होने के बराबर है. ओके, अंडरस्टूड? मार्जिनल मीन्स हेलो Poor farmer. हेलो. मार्जिनल मीन्स होता है बेटा कि जो अभी पुअर नहीं है लेकिन उनको केयर नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएंगे? वो भी पुअर, जो कि मतलब बॉर्डर पे हैं. ठीक है, किस पे है बेटा? Border. Border पे है. line. Poverty line. Very good. If you not be going to be cared, they can become the more poor. तो होते हैं मार्जिनल. तो गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड मोर एंड मोर. हाँ बेटा बोलो. Ma'am, if the condition of Indian agriculture is not good, then how India is securing any position in each of the crops? क्या बेटा? What? आवाज ही नहीं आ रही है. If the condition of Indian agriculture is not good, then how India is securing positions in each crops? Securing not India's condition will be not be good. So if the government will be help, to them, they can be secure ना. यही तो कहा जा रहा है कि उनका पोजीशन अच्छा नहीं. क्यों पोजीशन अच्छा नहीं? First you have to know the reasons why their position will not be so good. So how they can be secure? So you know that the poor farmers, India's की क्या maximum farmers are? Poor. बोलो पुअर. तो हाउ दे कैन बी सिक्योर बेटा? कैसे? कंडीशन क्यों खराब है? पहले यू नो द रीजन ना कि व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट. क्या रीजन है?
क्यों वो पुअर हैं, That more क्यों farmers कंडीशन are है poor as they don't have much capital. कैपिटल्स। तो इसमें जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम खेती नहीं कर पाते हो, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एनहांस योर कंडीशंस? कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? Government. गवर्नमेंट। तो इसीलिए कहा जा रहा है ना बेटा कि जो छोटे किसान है, क्योंकि मोस्टली फार्मर दे आर डिपेंड ऑन द farming. So what the government have to do? Government have to provide more and more subsidies. Government have to give the financial support to them. उनको बहुत अधिक क्या करना चाहिए? कैपिटल सपोर्ट करना चाहिए। तुम लोगों ने अभी देखा है कि गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने बैंकिंग फैसिलिटी की, इसी के अंदर आ रहा है। क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट अब सब्सिडी दे रही है, उनको सहयोग कर रही है, उनको क्या करे, सस्ते से सस्ते दामों में द गवर्नमेंट प्रोवाइड द सो मतलब टूल्स, और क्या कर रही है, हाइब्रिड सीड्स कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा उनको सस्ते दामों में प्रोवाइड कर रही है। मींस की द लोन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। ये सब गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है? और when the means the peoples are going to be affected by the any calamities, government also give us some relaxation to them. दे रही कि नहीं दे रही है? ये इसी के अंदर आता है बेटा सब। गवर्नमेंट क्यों कर रही है? फॉर सिक्योरिंग देयर पोजीशंस, उनके पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, कि इफ यू नॉट बी गोइंग टू बी सिक्योर टू देम, इफ यू नॉट बी गोइंग टू बी हेल्प टू देम, दे कैन नॉट बी ऑक्यूपाई एनी पोजीशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि यदि हमारे कंट्री के लोगों को यदि ओलंपिक में यदि जगह बनाना है, तो सरकार को क्या करना होगा कि जो गेम है उसको अधिक से अधिक उस पर फोकस करना पड़ेगा, अधिक से अधिक सरकार को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेनर लाना पड़ेगा, अदर कंट्री से ट्रेनर को बुलाना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब उसकी कंडीशन को इनहांस किया जा सकता है। और हम कहेंगे नहीं चलो ये खेल रहा है, चलो खेल रहा है, इसको भेज दिया। अरे एक ट्रेनर होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग देता है लोगों को किसी चीज को इनहांस करने के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तब। तो उसी तरह यदि हम अपनी कंडीशन, अपनी एग्रीकल्चर के कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, उसको इनहेंस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट हैव टू बी हेल्प टू दिस फार्मर बाय द फाइनेंशियल वे, फाइनेंशियल सपोर्ट। तब ये फार्मर्स क्या होंगे, अपनी कंडीशन को इनहेंस करेंगे। फिर उनको केवल पैसा ही सफिशिएंट नहीं होता है, गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड देम टू द टेक्निकल नॉलेज। देखा ना तुम लोगों ने, टेक्निकल नॉलेज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट स्टैब्लिश द Indian निकल Council पढ़ाया of था Agricultural Research. को इस्टेब्लिश किया है। फिर उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है, विच प्रोवाइड द टेक्निकल नॉलेज टू द फार्मर ऑफ दिस नेशन। दे रही कि नहीं दे रही है? तो गवर्नमेंट हैव टू बी इन्वेस्ट ओवर दैट। तो गवर्नमेंट विल बी, व्हेन द गवर्नमेंट इन्वेस्ट द मनी in these sectors, when the government provides a subsidy to the farmers, then the condition of farmer will be secure. Understood, Pransi? Yes, ma'am, but I'm asking, let's take example of rice. India is securing second place as the largest producer of rice. If developed countries are more developed in this area, then how they are not securing any position? India's. But we are the standing the positioner. We are saying that in the production of India is the second place. But in case of the quality maintenance, हमने कहा कि प्रोडक्शन से नहीं होता, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए बेटा। व्हाट क्वालिटी यू आर गोइंग टू बी मेक? हम तो प्रोडक्शन में है बेटा। हमने कहा क्या, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, बट यू नो प्रोडक्शन में, और हमने तो जब पढ़ाते समय तुमको क्या कहा, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। लेकिन हमने तो ये नहीं बताया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइस इन अर्निंग ऑफ जीडीपी, क्योंकि हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उसका अधिक कंज्यूम भी तो करते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन भी तो है। यस मैम। तो अधिक तो हम तो कंज्यूम कर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं बेटा? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ग्लोबल वर्ल्ड में तो एक्सपोर्टर को देखा जाता है बेटा ना, ग्लोबल वर्ल्ड में एक्सपोर्टर को, जब प्रोडक्शन को नहीं देखा जाता है कि तुम ये प्रोडक्शन कहा जाएगा, तुम जितना अधिक एक्सपोर्ट करोगे। जैसे हमने बताया था कि विच स्टेट इज द लीडिंग इन द राइस इन केस ऑफ द इनकम, तो तुम किसका नाम लिखोगे? हमने राइस पढ़ाते समय ये बात कहा था प्रांसी, याद है? यस मैम, यस मैम। किसका नाम बताया था? किसका नाम बताया था? पंजाब। पंजाब का नाम बताया था कि यदि प्रोडक्शन में तुम्हारा बंगाल बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है,
बंगाल, असम, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस। लेकिन इनकम के मामले में कौन लीड करता है? पंजाब एंड Punjab. हरियाणा। पंजाब। अब समझ में आया प्रांसी? Yes, ma'am. Francie, have you Ma'am, my understood? answer is so clear. क्लियर कि Yes, ma'am. उसमें क्या किया Ma'am, कि it means प्रोडक्शन that we will have to produce more than what we consume. yeah beta कि we have to produce such type of the food grains not only for the consuming, we have to produce more goods for the earning purposes. Farmer are growing the rice, but why they are earning, why they are growing? Only for their consuming. They are not growing the crops for earning purposes. So what is the importance? If they occupy any place, तुमने जो पैदा किया खा ली तो तुम्हारा कोई पोजीशन हुआ? नो इन पोजीशंस, कोई पोजीशन नहीं है। No, ma'am. ठीक है? When you are going to occupy the positions, when you are exporting more and more this thing to that, you are earning money by that, then your position will be secure. तो इंडिया के फार्मर्स कहाँ से करेंगे? वही बताया गया, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन बहुत हो रहा है, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट में क्या हो जाते बेटा? वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव, हमारा पोजीशन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं जितना कि हम कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? Consume कर लो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन हो रहा है कि हम Yes, ma'am. इंटरनेशनल मार्केट को ऑक्युपाई करना। तो इंटरनेशनल मार्केट पे कब करोगे? जब तुम अधिक से अधिक प्रोडक्शन करोगे। ठीक है? अब देखो, नाउ द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया? लर्न द ग्रीन रिवोल्यूशन। आई टॉट अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या फायदा हुआ? बट टुडे द अंडर मिस की कंट्रोवर्सीज इट इज बीइंग एलिट दैट इट हैज कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन। आज जो साइंटिस्ट हैं दे आर टोटली भी अगेंस्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। 1960s में जिस ग्रीन रिवोल्यूशन को इंक्लूड किया गया था, लॉन्च किया गया था फॉर द एक्सचेंज, फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, नाउ द साइंटिस्ट they started to be criticize these revolutions. Do you know why? Do you know why? Because overuse of fertilizer makes land degradation. Very good. Due to the overusing of And the fertility of the soil. fertility of the soils, also the green revolutions, they also be required more and more water. जो green revolution में जो production था उसमें बहुत अधिक वाटर की भी जरूरत पड़ती थी, है ना? हमने बताया कि वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ड्यू टू द वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटी मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ वाटर आल्सो, बहुत अधिक पानी कंज्यूम हो रहा है। तो व्हेन द मोर वाटर विल बी कंज्यूम, देन यू नो दैट द वाटर टेबल विल बी, ग्राउंड वाटर टेबल विल बी आल्सो बी डिक्रीज। Yes, ma'am. डिक्रीज हो रहा है ना? डिक्रीज हो रहा है ना? हम लोग जगह जगह पंपिंग से ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो वो जमीन में पानी तो निकल रहा है, तो ग्राउंड वाटर क्या रहा? बहुत नीचे भाग रहा है। तो देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो साइंस दे वर अगेंस्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। देखो, सरकार ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च किया। प्रोडक्शन जितना अधिक प्रोडक्शन होगा कम दाम सामान को बाहर स्कैरसिटीज। तो इसमें आ सकता है व्हाई डू द गवर्नमेंट मोटिवेट द फार्मर्स फॉर ग्रोइंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक, राइट डाउन। व्हाई डू द फार्मर, व्हाई डू गवर्नमेंट मोटिवेट द पीपल्स, मोटिवेट द फार्मर्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग? फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करें मोटिवेट? Because it does not destroy the fertility of soil and it requires less water, so that water हाँ. scarcity will क्यों? not happen. Because in this farming the crop can be grow without using of chemical fertilizers, okay, and it also be grow by the less quantity of water.
So the government motivate for growing which crop? Organic farming. Have you noted, beta? Yes. Next, a few economics. Cheaper or expensive? बेटा अभी तो फिलहाल ये बहुत महंगे आ रहे हैं बेटा, क्योंकि इतने तो डेवलप नहीं है। तो देखो तुम्हारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो मार्केट में मिल रहा है बेटा वो थोड़े महंगे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। जब ये बल्क में होगा बेटा तो ये तुम्हारा चीपर होगा, लेकिन ऑर्गेनिक जो है तुम्हारा अभी महंगा आ रहा है बेटा। ठीक है, Okay, ma'am. अभी महंगा है बेटा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, क्योंकि हम अभी इसमें इतने सक्सेस नहीं है, क्योंकि इसमें अभी हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पैसा लग रहा है। तो जब हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तब वो धीरे धीरे क्या होगा, चीपर होता चला जाएगा बल्क में। अभी तो बल्क में नहीं हो रहा है। ठीक है, A few economists think that Indian farmers have to bleak futures if they continue growing the food grain on the holding that grows smaller and smaller as the population rises. अब देखो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि इंडियन का फ्यूचर, जो फार्मर हैं उनका फ्यूचर क्या है, ब्लिंक कर रहा है, मतलब अंधेरे में है। क्यों अंधेरे में है? वाई? बिकॉज मीन्स की द फार्मर्स व्हाट दे ग्रो बेटा, फार्मर्स क्या अपने खेती में ग्रो करते हैं, स्पेशली द फूड ग्रेन्स, है ना, Yes, ma'am. सीरियल क्रॉप्स ग्रो करते। तो उनका कहना है कि यदि ये फूड ग्रेन यदि ग्रो करते रहेंगे तो इनका भविष्य अंधकार में है। क्यों अंधकार में है? क्यों कि द होल्डिंग दैट ग्रोथ इज स्मॉलर एंड स्मॉलर एट द पॉपुलेशन राइज। यू नो दैट कि द साइज ऑफ फील्ड या द प्लॉट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। दिन पे दिन जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो फार्मिंग एरिया वो क्या हो रहा है बेटा, उसकी साइज Decrease. डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने से क्या हो रही है, इंडियाज रूरल पॉपुलेशन, अब बता रहा है इंडिया रूरल पॉपुलेशन कितना है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज? 833. न्यू बुक में कितना दिया बेटा? 833 million. 833 millions which depend upon कितना है वहां पे आगे, 250 million. 250 million. 250 millions अप्रोक्स हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द हेक्टेयर पर पर्सन। कितना हेक्टेयर दिया नीचे तुम्हारे बुक में? ये लाइन पूरा पढ़ो बेटा कोई। लेस देन हाफ ऑफ द हेक्टेयर ऑफ ए पर्सन, मतलब तुम्हारे यहाँ रूरल एरिया पॉपुलेशन कितना है, 850 मिलियंस लोग रहते हैं। कहां पे रहते हैं बेटा? दे आर लिविंग इनटू द रूरल एरियाज एंड डिपेंड अपॉन द टू। और जो नेशन एरिया है वो कितना है, 250, ठीक है, हेक्टेयर्स है। तो यदि तुम इसको डिवाइड करते हो इन सारे लोगों में तो कितना जा रहा बेटा, कितना है? Less than half. हाफ से भी कम से कम। तो सबके पास इतनी छोटी छोटी जमीनें हैं। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं इफ दिस फार्मर्स ग्रो द सीरियल क्रॉप्स इन देयर प्लॉट्स दैट इज स्मॉल इन द साइज, दिस फार्मर्स फ्यूचर इज नॉट ब्राइट। यदि ये फार्मर अपने खेतों पे यदि सीरियल क्रॉप उगाते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, तो इनका फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनका प्लॉट छोटा है। प्लॉट छोटा है और छोटे फील्ड में यदि तुम क्रॉप है तुम्हारे पास, मान लो छोटा सा प्लॉट है, तो तुम कितना सीरियल क्रॉप ग्रो करोगे बेटा, कितना ग्रो करोगे? 1. इतना ही ग्रो करोगे, ओनली फॉर फीडिंग ऑफ योर, for the feeding of your family. Own family. families. It cannot be grow for the earning purposes. तुम earning के लिए तुम grow नहीं कर सकते हो। तो economists क्या करते हैं, what they have to do, what the Indian farmer have to do for earning more and more money, the economics say that for that the Indian farmer have to be, क्या किया गया, Indian farmer should
diversify their cropping pattern from the cereal to the high value crops. Now what they decided, what they are suggested to them, they suggested to them in the place of the cereal crops they have to grow such type of the crops, by that they can earn the more and more money. उनको अपने प्लॉट में, जो छोटा प्लॉट है उसमें इस तरह की फार्मिंग करनी चाहिए, इस तरह का प्लान ग्रो करना चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक क्या कर सके बेटा, अर्न कर सके। तो उनको क्या करना चाहिए, दिस विल इंक्रीज द इनकम एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस simultaneously because the fruit medicinal herbs। अब जैसे अपने प्लांट में क्या लगा दो, अपने प्लॉट में कोई भी फ्रूट लगा दो, जैसे मान लो तुम ग्रेप्स की खेती करोगे, ग्रेप्स लगा दिए, या अब मिस्टी बनाना ट्री लगा दिए, ठीक है, तो एक बार तुम बनाना ट्री लगाओगे, बार बार तो लगाओगे नहीं बेटा, बार बार लगाते हो? Yes, ma'am. एक बार लगा दिए, लेकिन तुम बल्क में तुम्हारे उस प्लॉट में भी बनाना लगा दिए तो तुम उसको अच्छी तरह से सप्लाई करोगे, और उस बनाना को तुम क्या कर सकते हो, सप्लाई करके तुम उससे जो अर्निंग करोगे उससे तुम सीरियल क्रॉप भी खरीद सकते हो और तुम्हारा इनकम भी अच्छा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes. तो गवर्नमेंट का मतलब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फार्मर्स को क्या करना चाहिए, कि फार्मर जो स्मॉल फार्मर है उनके लिए कहा जा रहा है, दीज स्मॉल फार्मर हु हैड अ स्मॉल प्लॉट फॉर द farming, in the place of these farmer, what they have to do, in the place of cereal crops they have to be grow which type of crop, High value crop. plantation farming, ठीक है। उससे क्या होगा, हाई वैल्यू क्रॉप्स में सच लाइक द फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट, आजकल देखो मेडिसिनल प्लांट जो आयुर्वेदिक प्लांट, आयुर्वेदिक मेडिसिन आजकल ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो यदि वो मेडिसिनल प्लांट को लगाते हैं तो उसको सप्लाई करके क्या कर सकते हैं, वो More earning. They can earn better. मोर अर्निंग। तो उस उतने प्लॉट में मतलब लेस देन हाफ हेक्टेयर में यदि वो सीरियल क्रॉप ग्रो करते हैं तो उतनी अर्निंग नहीं होगी जितना कि वो मेडिसिनल प्लांट या फ्रूट लगाकर कि वो अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, या फ्लावर, देखो तुम्हारा यदि तुम्हारे घर में यदि माली फूल देता होगा, रोज मॉर्निंग में आकर करके फूल माला दे रहा है ना, और महीने में क्या कर रहा है, हर घर से 150-200 रुपए ले जाता है। तो सोचो तुम यदि उतने एरिया में यदि बहुत ढेर सारा फ्लावरिंग करते हो, फ्लावर प्लांट लगा देते हो, तो उस फ्लावर को बेच करके तुम्हारी रोज की अर्निंग कितनी हो जाएगी बेटा। तुम हर घर में मान लो या तुम मार्केट में ही सप्लाई करते हो फूल माला, तो डेली का कम से कम 1000 की अर्निंग होती है बेटा, 1000 की अर्निंग होती है। और सीरियल क्रॉप में कितनी अर्निंग है बेटा, कितनी अर्निंग है, कितनी अर्निंग है बोलोगे? वेरी लेस। इसमें तुम्हारा पानी भी बहुत कम लग रहा है, सीरियल क्रॉप ग्रो कर रहे हो, मान लो राइस ग्रो कर रहे हो तो उसमें क्या चाहिए बेटा, बहुत अधिक वाटर चाहिए, More water. Yes. More water. वाटर चाहिए। और तुम उसमें क्या कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हो, सारा चीज खरीदना पड़ रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एक बार तुम फ्लावर को लगा दोगे तो कम पानी में भी अच्छा खासा फ्लावरिंग होगी तुम्हारी, और वो क्या होंगे, और इससे तुम्हारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें तुम्हारे ऑर्गेनिक मैन्यूर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें तुम केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारा उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट भी सेफ हो रहा है, अर्निंग भी तुम्हारी इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है, और उस अर्निंग से तुम्हारा अपना स्टेटस भी मेंटेन कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स ये सब देते हैं, व्हाट द इकोनॉमिक्स से दैट, व्हाट द इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट, व्हाट द इंडियन फार्मर हैव टू बी ग्रो in place of the cereal crops, Fruits, medicinal herbs, or flowers. Medicinal herbs. flower, vegetables, biodiesel crop। देखो जैटोफा होता है, ये क्वेश्चन आया था कि which plant is used for the production of डीजल, जो डीजल गाड़ी जिसे चलती है तो किस प्लांट से बनता है, which plant, जैट्रोफा। राइट डाउन, by which plants we get डीजल, तो जैट्रोफा एंड जोजोबा, ठीक है। नीड मच लेस इरिगेशन देन राइस और द सुगर केन, ठीक है। इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी
harness to grow the wide range of high valued crops. इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? अधिक से अधिक किस तरह का की वैल्यू को ग्रो कर सकते हैं बेटा? Which type of the crops we can grow? High value crops. High value. Or in place of Cereal crops. Cereal Which are low crops. earning crops. cereal crops. Who suggested this? Indian Indian economist. economist. Indian economic suggested that through which plant we can produce the diesel? Jatropha and Jatropha and jojoba. Very. What is the population of the? What is the rural population? 833 million. 833 million. Okay. What is the agricultural lands? 250 million. 250 million. Very good. Very good. Now you tell me, which type means ki which revolution was started for motivating the people for the organic farming? Gene revolution. Gene revolution. Gene revolutions. Very good. Now, next question is, अच्छा, who are the, यहाँ पे बता सकते हैं, who are the founder of gene revolution? Indian scientists. नहीं, इंडियन साइंटिस्ट नहीं है. पॉल वर्क. इट इज द मीन्स अमेरिकन फार्मर है, अमेरिका के साइंटिस्ट है. पॉल वर्क. पॉल POUL पॉल वर्क WARGUE. ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था जीन रिवोल्यूशन को. ओके, अरे किसको? ऑर्गेनिक फार्मिंग को. ठीक है, तो वो थे ही स्टार्टेड द जीन रिवोल्यूशन फॉर दैट. तो हु आर द फाउंडर, हु आर द फादर ऑफ जीन रिवोल्यूशन? तो पॉल वर्क वाज द. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Any query in this? Any query? Any query बेटा? कुछ पूछना है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चलो एमसी लेकर के डाल देना बेटा इसमें. ठीक है, how many MCQs are there? Today's MCQ? Yes, ma'am. कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन आज में? How many questions are there बेटा? कितने क्वेश्चन आज हमने दिए हैं? देखो लिखे ही नहीं बच्चे. No one is noted down. Ma'am, 8 question. Only 8 questions. Ma'am, 15, 16 question. पहले तो what is the meaning? Is the globalization is the phenomenon of ancient, modern or medieval? Ancient Okay. phenomenon. Ancient. She makes the questions, which part of India's is the largest exporter of spices? Southern part. Southern part of India's. ठीक है, which part of Britain was popular for textile industries? Manchester. Liverpool. Okay. Next, which raw material is needed for running of textile industries? Cotton. Cotton. Next, when was Champaran movement?
When was Champaran movement started? 1917. For which plantation? For which plantations? Indigo For plantation. which? हाँ तो देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे थे। इंडिगो, ठीक है। Why did people मतलब why did farmer of Champaran not interest in growing of indigo? Because indigo plantation destroy their soil, fertility of The soil. fertility of soil was destroyed. They were not growing. They were not giving it income. Very And good. due to its Next unable to thing, grow cereal crops. अच्छा, after which period Indian farmers after which periods Indian farmer have to face new challenges in the global phenomena? 1990. 1990. In 1919. Okay. Next things, in spite of the largest producer in rice, cotton, rubber, tea, जो भी दिया हुआ, vice versa. In spite of largest producer in this, Indian farmers could not be compete with the farmer of developed countries. Because the developed country are provided highly Developed countries subsidies by their provide more government. subsidy to their farmers. Developed countries government provide the highly subsidies. Very good. Next things. अच्छा, why do scientists criticize the Green Revolution? Because it reduced the fertility of the soil and reduced the water level. Very good. ठीक है. Then for motivating farmers for organic farming, which revolution was started? Green revolutions. Okay. Next. और इधर वाला तो लास्ट में भी लिखवा दिया हमने. To which plant from which plants diesel is obtained? Jatropha and jojoba. What is the view of Indian economist? The farmer with small plot of land should grow some crops which give him more earning. High value. Medicinal. The farmer have to be grow inside of the crop high value crop in the place of which type of the crop they have to grow? Cereal crops. High value. Which type of crop? In the place of cereal crops. In the place of cereal crop, which type of crop they have to grow? High value crops like fruits, High value crops and flowers. crops. ठीक है. और ये पॉपुलेशन वाला तुमने लिखवा दिया है कि कितना पॉपुलेशन है क्या है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए देखो. हो गया ना.
How many questions are there? How many questions, beta? Ma'am, Ma'am, 13. 30. Ma'am, 21. 30. तब देखो इतने सारे क्वेश्चन है, तो यू हैव टू बी नोटेड अबाउट बेटा कि हमने शुरू से कहा कि यू हैव टू बी फोकस ऑन द एमसीक्यू, क्योंकि मैक्सिमम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। जितना तुम इस पे फोकस करोगे उतना ही फायदा है, क्योंकि सारे एमसीक्यू ही आएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हारा देगा एग्जाम में, जैसे कि एग्जाम में तुम्हारा दे देगा जैसे राइस प्रोड्यूसिंग मैप का हमने तुम्हें दिया है, शेयर किया है। यू नोटेड डाउन द मैप वर्क ऑफ दिस। Yes, ma'am. मैप वर्क नोट डाउन करो। देखो मैप में मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, और एग्जाम में जैसे एरिया दे देगा बेटा, ठीक है, लिसन, कि कोई एरिया जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया दे दिया, इट इज द प्रोड्यूसिंग ऑफ, जैसे मान लो तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को दिखा दिया, वहां पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे अधिक क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऑप्शन दिया राइस, व्हीट, उसके बाद दिया पल्सेज, ये सब दीजिए, किस पे टिक लाओगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, Wheat. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में व्हीट को लिखोगे। ठीक है, तो ये याद रखोगे, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट एरिया, नॉट द स्टेट एरिया, देन लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, Maharashtra. 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 वेरी गुड, पहले यूपी था, नाउ महाराष्ट्र। टी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, West Bengal. West Bengal. No, ma'am. असम। Assam. Assam. अब देखो उसमें गुड क्वालिटी ऑफ टी आएगा तब लिखोगे, गुड क्वालिटी ऑफ टी, देन यू राइट दिस, वेस्ट बंगाल या दार्जिलिंग। कॉफी, South western part. Karnataka. Nilgiri, the other chapter of Baba. Nilgiri. Nilgiri. Very good. रबर के लिए बोल रहे थे बेटा, अरे केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बेटा, लार्जेस्ट पूछ रहा है ना, केरला। Kerala. कॉटन, कॉटन, Maharashtra. वेरी गुड। जूट, जूट, वेरी गुड। तो ये सारा बता दें, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। ठीक है, ये तुम्हारा किस में हो जाएगा, इसके लार्जेस्ट स्टेट बारे में पूछेगा। ठीक है, और राइस और व्हीट का एरिया पूछेगा। नाउ इन द वाटर रिसोर्सेज बेटा, ऑल ऑफ यू ओपन द चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स की ओपन करो बेटा, ऑल ऑफ यू, वाटर रिसोर्स पेज, खोला, चैप्टर नंबर 3, Yes, ma'am. Yes, ma'am. have you opened? Come on the page number 28. आ गए, देयर इज a map. Yes, ma'am. अच्छा, go to the Jammu and Kashmir, go to the Jammu and Kashmir, there is Salal project. Have you found? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mila, underline this one, this you have to practice for the Salal project, उसको अंडरलाइन करो। देन कम ऑन टू द सेम, थोड़ा सा नीचे आओ, दे भाखरा नांगल डैम, थोड़ा सा नीचे आओगे, पंजाब और हरियाणा के जंक्शन पे, Yes, ma'am. ओके, दैट डैम, थोड़ा सा उसके नीचे आओगे, कमिंग टू द उत्तराखंड, देयर ये टेरी डैम,
थोड़ा सा नीचे आओ, आए मिला टेरी, Yes, ma'am. मिल गया, इसमें शेयर किया है, टेरी मिल गया। देन कम ऑन टू द, ठीक है, अब तुम सीधे चले आओ, राजस्थान से होते हुए गुजरात के पास आओ, राजस्थान से होते हुए गुजरात के पास आओगे, वहां पे तुमको लिखेगा राणा प्रताप सागर। Yes, ma'am. राणा प्रताप सागर मिला, Yes, ma'am. ठीक है, उसको अंडरलाइन करो। ऊपर वाला राणा प्रताप है, नीचे वाला गांधी सागर है, राणा प्रताप को बस। फिर नीचे आओगे बेटा, एकदम गुजरात में नीचे आ जाओ, वहां पे तुम्हारा जहां नर्मदा की, वहां पे सरदार सरोवर दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, उसको मार्क करो। वेरी गुड, सरदार सरोवर मिल गया। फिर तुम थोड़ा सा नीचे चले आओ, नीचे आते आते महाराष्ट्र के पास आओगे, महाराष्ट्र से होते आंध्रा में घुस जाओ, घुसे आंध्रा में, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वहां पे नागार्जुन सागर दिखा, नागार्जुन सागर, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. उसको मार्क करो। फिर तुम कर्नाटक में आ जाओ बेटा, कर्नाटक में आओ, वहां पे तुमको तुंगभद्रा दिखा होगा, तुंगभद्रा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो जो सर ब्लैक डॉट है बेटा, उसको तो बस उसको फोकस करना है, डैम है, ठीक है, जो डॉट है उसी पे फोकस करना है, रिवर पे नहीं, ठीक है। तुंगभद्रा मिल गया। Yes, ma'am. अब तुम जो है, अरे बे ऑफ बंगाल जो है तुम्हारा, उसको पकड़ते हुए तुम सीधे अब तुम आओ इधर, ऊपर चलते जाओ वेस्ट बंगाल की तरफ, आ जाओ उड़ीसा में। उड़ीसा जानते हो कहाँ है उड़ीसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वहां पे देखो एक हीरा कुंड है, वहां पे हीरा कुंड दिख रहा है महानदी पे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल गया। बस इतना है बेटा, Yes, ma'am. इसका हम एक क्लिप तुम्हारे उसमें भेज देते हैं, ठीक है। एक मैं क्लिप भेजूंगी, सर्कल किया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको तुम्हें करना होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. वो सर्कल जो रहेगा उसी को तुमको करना होगा। इज इट क्लियर? इसको प्रैक्टिस करोगे, इतना डैम ही तुमको प्रैक्टिस करना है। दिस विल बी आस्क्ड, राणा प्रताप सागर इन विच स्टेट? तो सलाल प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? सलाल किसमें आता है? Jammu and Kashmir. Jammu and भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, Kashmir. भाखड़ा नांगल, Punjab. Punjab. इन द जंक्शन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। टिहरी, Uttarakhand. टिहरी उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर, Rajasthan. Rajasthan. ठीक है। देन सरदार सरोवर, Gujarat. Gujarat. वेरी गुड। Gujarat. Gujarat. देन नागार्जुन सागर, Andhra Andhra Pradesh. Andhra Andhra Pradesh. Pradesh. तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, Pradesh. Karnataka. Karnataka. हीराकुंड, हीराकुंड, Odisha. उड़ीसा। बस उड़ीसा। इतना तुमको प्रैक्टिस करना बेटा। नाउ द ज्योग्राफी फॉर द फर्स्ट टर्म इज कंप्लीटेड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. नाउ फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट। क्या स्टार्ट करें? फेडरलिज्म की बोलो, Civic जल्दी बोलो। second. Ma'am, civic Ma'am, second. federalism. चलो ठीक है, फेडरलिज्म आई विल स्टार्ट। ओके, Yes, एम यू रेडी फॉर द टेस्ट? टेस्ट में जो Yes, ma'am. बाकी जो बचा हुआ हिस्ट्री का, विल रेडी फॉर दैट। ओके, Okay, ma'am. चलो Okay, ma'am. ओके, बाय बेटा।